हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो वी ऑल नो दैट केमिकल फार्मूला इज ऑफ टू टाइप्स, one is empirical formula and other is molecular formula. So first of all we are talking about empirical formula. Basically what is empirical formula? So देखो, here the definition is the formula which gives the simple whole number ratio of atoms of various elements present in one molecule of the compound is called empirical formula. So basically what is empirical formula? Now I am explaining this by the help of these some examples. So the examples are like as you can see in this table, compound is hydrogen peroxide. The molecular formula of this compound is H2O2 and the empirical formula is HO. Means हम एक रेशियो ले रहे हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला एक रेशियो है, वो जो एटम्स जो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में प्रेजेंट होते हैं वो उसका एक रेशियो है। लाइक एज बेंजीन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, but now in empirical formula we are taking only the ratio. So if we will divide this C6H6, these two numbers, by 6, then we are getting C1H1, but there is no need to write 1. So we are taking the empirical formula CH. The next example is glucose. Molecular formula of glucose is C6H12O6. See, 6, 12 and 6, these three numbers are divided by number 6. So when we will divide this 6 by 6, we will get 1. When we will divide this 12 by 6, we will get 2. And this 6, when we will divide by 6, then we will get 1. So it is a ratio of all these three numbers. The next example is sucrose. Molecular formula of sucrose is C12H22O11. There is no any common number in these numbers 12, 22 and 11. So we are getting the empirical formula similar to this C12H22O11. कोई नंबर नहीं है यहाँ पर जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नैप्थलीन. The molecular formula of naphthalene is C10H8. We can divide this 10 and 8 by 2. So we will get the empirical formula C5H4. So I think now it is clear to you what is empirical formula and what is molecular formula. What is the relation between empirical formula and the molecular formula? See, what is the formula to calculate the empirical formula or the molecular formula? The formula is molecular formula is equals to N into empirical formula, and mass of the second formula is mass of molecular formula is equals to N into mass of empirical formula. Now here what is N? Here N is a simple whole number and may have value 1, 2 or 3. Now we will calculate question number 3rd. This is the back exercise question of chapter 1 of NCERT book. Question is, determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass. So देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक अ टेबल. In that table we need to write these terms like element, atomic mass, percentage composition, moles of atom. Percentage composition मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, बट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, सो यहाँ पर हमको इसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. मोल्स ऑफ एटम, मोल रेशियो, सिंपल होल नंबर. सो देखो एलिमेंट में देखते हैं. द क्वेश्चन इज डिटरमिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन. आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe और O, यहाँ पर दो एलिमेंट लिए गए हैं Fe एंड O. सो एटॉमिक मास,
ये हमें याद होना चाहिए। आपको 1 से लेके 30 तक एटॉमिक मास टिप्स पे होने चाहिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास टिप्स पे होने चाहिए। So the atomic mass of Fe is 56 and oxygen is 16. Percentage composition is given in question. Iron, which has 69.9% iron, so it is 69.9%, and 30.1% dioxygen, so 30.1% oxygen. So mole of atom, mole of atom निकालने के लिए हमको एटॉमिक मास को हमको एटॉमिक नंबर से हमें देखो ये परसेंटेज कंपोजिशन को हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। सो 69.9 अपॉन 56, हेयर 30.1 अपॉन 16। अभी जब हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 1.25 एंड यहाँ पर 1.88। अभी हमें मोल रेशियो निकालना है, तो इनकी हेल्प से हम मोल रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। सो देखो इनमें अभी यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, बट अगर यहाँ 4 होते, 5 होते, 6 होते, तो जो सबसे छोटा वाला मोल ऑफ एटम होता हम उसको यहाँ पे एज ए डिनोमिनेटर कंसिडर करते। मींस जितने भी मोल ऑफ एटम आते हैं उन सबको हम इनमें से सबसे छोटे मोल ऑफ एटम से डिवाइड करते। तो इस टेबल में यहाँ पर 2 मोल ऑफ एटम है, 1.25 और 1.88। यहाँ पर 1.25 इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू 1.88, सो वी डिवाइड दिस 1.25 by 1.25 एंड 1.88 by 1.25। देखो यहाँ पर तो हमें 1 मिलेगा और यहाँ पर हमें 1.5 मिलेगी वैल्यू। अभी यहाँ पर 1.5, यहाँ पे हम कभी भी पॉइंट्स में वैल्यूज़ को नहीं लेते हैं, तो हमें इसको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम इन 1.5 को व्हेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 2 देन वी विल गेट ए होल नंबर 3। तो हम यहाँ पर जितने भी नंबर्स होंगे हम उनको उसी अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 एंड 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3। अभी यहाँ पे इज इक्वल्स टू 2। अभी यहाँ पर 2 और 3 हमको रेशियो मिल गया है। सो देखो अभी हमारा यहाँ पर जो इम्प्रिकल फॉर्मूला होगा वो अकॉर्डिंग टू रेशियो होगा। सो इम्प्रिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू Fe के आगे 2 है, Fe2O3। So next question is a compound contain 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molecular mass is 98.96. What are its empirical and molecular formula? This question is also from NCERT. So students, to calculate this question I made this table. So first is element। टेबल में जो कॉलम्स हमने बनाए हैं उसमें एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक मास, मोल्स ऑफ एटम, मोल रेशियो और एटॉमिक रेशियो एंड होल नंबर। यहाँ पर होल नंबर का मैंने कॉलम अलग से बनाया है। अभी हमारे पास हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो देखो हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, 3 एलिमेंट्स गिवन हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन एलिमेंट्स। परसेंटेज कंपोजिशन हम देखते हैं तो 24.27% कार्बन, 24.27% कार्बन, 71.6% क्लोरीन एंड 4.07% हाइड्रोजन, 4.07% हाइड्रोजन। सो एटॉमिक मास हमें लर्न होने चाहिए। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 होगा। अब है मोल्स ऑफ एटम। तो मोल्स ऑफ एटम के लिए हम फिर से वही चीज़ रिपीट करेंगे, हम परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो 24.27 अपॉन 12
4.07 अपॉन 1, 71.65 अपॉन 35.5। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2.02, यहाँ पर 4.07 और यहाँ 2.02। अभी हम देखेंगे इनका मोल रेशियो। तो देखो 3 है, इन 3 में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2.02 ऑब्वियसली। सो 2.02 को वी विल डिवाइड बाय 2.02, 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02 and 2.02 is divided by 2.02, we will get the value 1। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल जा रही है, 2 2 जा 4 और 2 यहाँ पर 1। तो यहाँ पे हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। हमारे पास होल नंबर में 1, 2 एंड 1 है। सो देखो इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मिला है C1H2Cl। So CH2Cl. Now the second step is we need to calculate the molecular formula. See, molecular formula कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला का एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। हम इन सबका सम निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। सो देखो यहाँ पर वी आर गेटिंग द मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, इट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला इज 49.5 and the mass molecular mass is given in the question. So molecular mass is given in the question, that is 98.96. So we know, अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू n इंटू मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम n को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए ये यहाँ से आया है, n यहीं पर है और ये मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ अपॉन डिनोमिनेटर में चला गया है। सो n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 98.96 था, 98.96 एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास हमारे पास 49.5 था। When we will divide this 98.96 by 49.5, then I am getting the value 2. So molecular हमें पता है, हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था कि molecular formula is equals to n into mass of empirical formula। इसी तरीके का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि molecular formula is equals to n into empirical formula। सो उसी में वैल्यूज पुट करते हुए n की वैल्यू 2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2Cl पुट करते हुए नाउ आई एम गेटिंग C2H4 और Cl2। इस 2 से अंदर सभी को मल्टीप्लाई कर दिया है, C2H4 और Cl2। तो ये हमारा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया है। आई होप इस वीडियो से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन या कोई और क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।